Hello students, today in this session we will discuss unit number 1, fundamentals of digital system and logic families. In we are going to cover number system, binary codes, Boolean algebra, different logic gates and logic families. Commonly number system there are mainly 4 numbers system which are used in digital electronic platform. First is decimal. The decimal number system contains 10 unique symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. The base or radix is 10. Nines and tens complement are possible for any number system. Second number system is binary. Binary number system contains 2 unique symbols 0 and 1. The base or radix is 2. Ones and twos complement are possible for any binary. Third is octal. Octal number system. The octal number system contains 8 unique symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. The base or radix is 8. Sevens and eights complement are possible for any octal number. Next is hexadecimal number. The hexadecimal number system contains 16 unique symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and letter A, B, C, D, E and F. The base or radix is 16. 15 and 16 complement are possible for any hexadecimal number. Now let us see different type of conversion on the basis of basis. First, let us see the different possibilities. First is decimal to binary and binary to decimal. Second, decimal to octal and same way octal to decimal. Decimal to hexadecimal and hexadecimal to decimal. Likewise, different another conversion we can convert. For example, 25 is a decimal number. Here base is 10. Its equivalent binary number and we can convert it into a octal number and like hexadecimal number, right? These are the different possible conversions. Here 16 is base for hexadecimal. Now let us discuss the conversion decimal to binary. In this technique we have to divide number by 2 and keep track of remainder. The remainder reads from bottom to top, that gives our answer. It is for integer number. Let us see the example. Here 125 is our decimal number. First we have to divide it by 2. Here the remainder is 1, right? 62 into 2, right? 62 into 2 means 124. Remainder is 1. Again repeat this process. We will divide 62 by 2. 62 by 2 means 31, right? Remainder is 0. Again 15 into 2 means a 30, remainder is 1. Same way 7 into 2 14, remainder is 1. 2 into 3 6, remainder is 1. 2 into 1 is 2. 3 minus 2 is 1, remainder is 1. 0 into 2. 0 into 2 means a 0. 1 minus 0 means remainder here 1. Right? The simple process here we have to divide given number by 2. Keep
split the remainder. If remainder is 0, then put it here 0. If remainder is 1, then put 1. And write answer from bottom to top. We have to write answer from bottom to top. So our answer is 125. Decimal number is 1111101 binary. Right? Second example, if decimal number is fractional, right? Here given number is 0.6875, which is a fractional number. To convert this fractional decimal number into an equivalent binary number, we have to multiply it with 2, right? 0.6875 into 2 equal to 1.3750. Here we have to split this number into an integer and fractional part. So 1.375, in this number integer is 1 and fractional is 0.7350. So put it into a integer and fractional separately. Take this fractional number 0.3750 into 2. Our answer is 0.7500. In this integer part is 0. So put 0 in the integer and 0.7500 into a fractional part. Again 0.7500 into 2. Answer is 1.500. So 1 in a integer and 0.500 in the fractional. Again repeat the same process. Here 1 into a fractional and 1 into integer and 0 into fractional. So we have to write integer part from bottom to top. Top to bottom. In integer we have to write into a bottom to top. In fractional we have to write the answer in top to bottom. So our answer is 1011. Right? The 0.6875 decimal number to a equivalent binary number is 0.1011. ओके, तो हमें याद क्या रखना है इसमें, अगर इंटीजर पार्ट है तो डिवीजन करना है बाई 2c, राइट, एंड अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो हमें मल्टीप्लाई करना है बेस से. हियर बेस इज 2, राइट, एंड जो भी नंबर आंसर हमें मिलता है उसको स्प्लिट करना है, एक इंटीजर में लिखना है और पॉइंट के बाद का फ्रैक्शन में लिखना है. सेम जो फ्रैक्शनल पार्ट है उनको हमें नेक्स्ट इटरेशन के लिए लेना है, राइट, उनको अगेन मल्टीप्लाई करना है. ये प्रोसेस हमें 5 टाइम्स करनी है, राइट. अगर और एक्यूरेसी चाहिए तो हम आगे कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट. In this technique, multiply each bit by 2⁻n, where n is the weight of bit. The weight is the position of the bit starting from 0 on the right and finally add the result. Let us understand this with an example. Here the given binary number is 101011. We have to convert into a base 10, means a equivalent decimal number. Okay. The given binary number is 101011, right. So take this 1 from right side, right. 1 into 2⁻0, right. We have to multiply it with base, right. Here is 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Column number start from the right side, right. Right side is 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. 1 into 2⁻1. 0 into 2⁻0. Again 1 into 2⁻3. 0 into 2⁻4 and 1 into 2⁻5. Right. Here 1 into 2⁻0. Anything is to 0 is 1. 1 into 1 is 1. 1 into 2⁻1 means 1.
0 into 2 raised to 4 means 0. 1 into 2 raised to 3, 8. 0 into 2 raised to 4, 0. 1 into 2 raised to 5, 32. Right? So our binary number 101011 and its equivalent number is 43. Here addition is 32 plus 8 plus 2 plus 1, that is the 43. Okay. Now convert fractional binary number to a decimal number. Same way here, this is the radix point, or you can say the binary point, right? From radix point to left, 0, column number is 0, 1, 2, 3, and radix point to right, minus 1, minus 2, right? So here is the radix point, means 1 into 2 raised to 0, 1 into 2 raised to 1. Here is the radix point, this side means the right side, right? 1 into 2 raised to minus 1, right side means radix से right side means the minus. 1 into 2 raised to minus 2, right? Its value is 1 into 2 raised to 0, 1, 1 into 2 raised to 1, 2, right? And 1 into 2 raised to minus 1, 2 raised to minus 1 means 1 upon 2, 1 upon 2 means 0.5. Same way here 1 into 2 raised to minus 4 means 1 upon 2 raised to 2 means 1 upon 4, 1 upon 4 means 0.25. Okay. So 11.11 binary is radix से पहले, previous one, right? So 1 plus 2, 3, and after radix 0.5 plus 0.25 means 0.75, right? To convert binary to decimal, we have to remember two things. For simple number, represent a decimal number. Representation means what? We have to represent with the base, right? Here the base is 2. Or if number is fractional, right, then same process, but we have to remember the radix point. Radix points say previous one means a 0, 1, 2, 3 column number, and radix points के after means minus 1, minus 2. Okay. यहाँ पे याद रखना है ये रेडिक्स पॉइंट से आगे जाते हैं तो 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2 जितने भी नंबर हैं, और रेडिक्स पॉइंट के बाद मीन्स माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, राइट? यहाँ पे 0 से अगेन स्टार्ट नहीं करना है, माइनस 1, माइनस 2 से स्टार्ट करना है. ओके. और सिंपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पॉइंट के आगे की जो है वो पॉइंट के आगे लिखना है, रेडिक्स पॉइंट के बाद में है जो उसको एडिशन करके बाद में लिखना है. तो ये हो गया हमारा बाइनरी का डेसिमल, राइट? अगर सिंपल है तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन. नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल टू ऑक्टल नंबर. इन दिस डिवाइड बाय 8. कीप द ट्रैक ऑफ रिमाइंडर. फॉर एग्जांपल, we have same way we have to read reminder from bottom to top. Example is 125 decimal number, base is 10. We have to convert into a octal number, means a base is 8. So we have to divide 125 with base, right? Here the base is 8 means octal number means, right? So 125 divide by 8 means 5. Remainder is 5. Again we have to divide 15 by 8. 8 into 1. Remainder is 7. Here the base is 8 means reminder's possibility is 0 to 7. Okay. Write the answer from bottom to top. 175. Okay. 175 is our equivalent octal number. If decimal number is fractional part, if decimal number contain the fractional part 0.6875, right, and we have to convert into equivalent octal. So same process like previous one, we have to multiply with
base. Here the base is 8. 0.6875 into 8. Right? Split the answer into integer and fractional part. Here integer is 5 and fraction is 0.5000. Right? Again take fractional part 0.500 into 8 means 4.00. Keep the 4 as integer and fractional is 0.000. Right? Here the 0.000 into 8 means 000. So we can stop here. Right? If it will not 0 in fractional part, we have to continue up to 5 iteration. Right? So our answer is 5.54. Right? तो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना है? अगर इंटीजर ऑक्टल नंबर है, राइट, अगर इंटीजर ऑक्टल नंबर है तो उनको 8 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आए वो रिमाइंडर पोर्शन में लिखना है. राइट? कब तक करना है? जब तक 1 नहीं आ जाए. राइट? और आंसर को हमें बॉटम टू टॉप लिखना है. राइट? और अगर फ्रैक्शनल पार्ट आया तो जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है उनको बेस मीन्स हियर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इंटीजर एंड फ्रैक्शनल. राइट? पॉइंट के आगे का जो है जो इंटीजर में लिखना है और उसके बाद का जो है फ्रैक्शनल में लिखना है. राइट? ये कब तक करना है? 5 टाइम्स करना है. राइट? अगर आप और एक्यूरेसी चाहे तो आगे कर सकते हैं, पर 5 टाइम्स आपको करना है. पर यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड इटरेशन में 0 0 0 आ जाता है. तो 0 0 इंटू मल्टीप्लाई 8 करें तो वापस से 0 0 सभी में 0 0 आएगा. तो हमें यहाँ पे आगे. नाउ नेक्स्ट इज ऑक्टल टू डेसिमल. In this technique, multiply each digit by 8 raised to n, where n is the weight of digit. The weight is the position of the digit starting from 0 on the right. Right? Right side से 0 से start होता है. Finally at the result. यहाँ पे क्या है 724 octal number है. We have to convert into a equivalent decimal number. तो 7, 2 और 4 को सेपरेट करना है. राइट? और राइट साइड है मीन्स राइट साइड यहाँ पे क्या है 4 है, वहाँ से हमें कॉलम नंबर 0 लेना है. 4 इंटू 8 रेज़ टू 0 बिकॉज हमें डेसिमल क्या करना है कि ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो ऑक्टल बेस है उनसे मल्टीप्लाई करना है. 4 into 8 raised to 0, 2 into 8 raised to 1 and 7 into 8 raised to 2. राइट? जो भी वैल्यू आए उनको हमें एडिशन करना है. तो ये हमारा आंसर हो गया ऑक्टल टू डेसिमल. ओके. नाउ नेक्स्ट इज अगर ऑक्टल नंबर में फ्रैक्शनल आता है, मिक्स ऑक्टल नंबर आता है, इंटीजर भी आता है और फ्रैक्शनल भी आता है, तो क्या करना है? राइट? तो सिंपल, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है उनको सेपरेट करो और जो भी इंटीजर पार्ट है उनको सेपरेट करो. इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन सेम इंटीजर के जैसा ही होगा. पॉइंट है रेडिक्स, उसके आगे मतलब 0 1 2 3 लेना और उसके पीछे मीन्स -1 -2 लेना है. राइट? तो यहाँ पे होगा 3 इंटू 8 रेज़ टू 0, ये रेडिक्स है तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 आएगा. 4 इंटू 8 रेज़ टू 1. राइट? आफ्टर रेडिक्स पॉइंट मीन्स ये रेडिक्स पॉइंट है, उसके बाद क्या है 2, तो 2 में क्या आएगा 8 रेज़ टू -1. 2 इंटू 8 रेज़ टू -1. ईयर 5 इंटू 8 रेज़ टू -1. राइट? इसकी वैल्यू क्या है 32. ये 3 हो गया. ये हो गया हमारा 2 इंटू 8 रेज़ टू -1 मीन्स 2/8. 2/8 मीन्स 1/4 मीन्स 0.25 हो गया. ईयर 5 इंटू 8 रेज़ टू -2. राइट? तो 5/8 रेज़ टू 2 हो गया. तो ये वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ऐसी आएगी 0.0781. राइट?
अब इसके आगे का जो है ये पॉइंट है रेडिक्स पॉइंट, उसके आगे का जो है 32 प्लस 3 35, फिर रेडिक्स पॉइंट, इसके बाद ये जो एडिशन है ये 3 to 8 में, राइट। तो ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अगर सिंपल नंबर है, इंटीजर नंबर है, राइट, तो उसको बेस से रिप्रेजेंट करना है। अगर फ्रैक्शनल है, राइट, तो रेडिक्स के आगे 0 1 2 लेना है और रेडिक्स के पीछे -1 -2 लेके रिप्रेजेंट करना है, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. In this, divide by 16, right? We have to divide the given number by 16 and keep the remainder as an answer. The remainder reads from bottom to top. Here the example is 1 2 3 4 decimal number and we have to convert into a 16. So we will divide 1 2 3 4 by 16, right? 77 is answer, remainder is 2. Same way 77 again divide by 16, so 13, right? Here 13 is equal to D, right? ये कैसे आया 13 is equal to D? ये क्या है हमारा रिमाइंडर है, राइट। तो हेक्साडेसिमल में रिमाइंडर कैसे लिखते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, ऐसा लिखा। फिर 10 है उसके लिए A लेना है, राइट, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, ऐसा लिखना है, ओके। ये हमारा 4 रिमाइंडर, तो 4 एज इट इज रहेगा, राइट। द आंसर इज बॉटम टू टॉप, राइट। तो 4 13 2, तो 13 नहीं लिखना है, हम क्या यूज कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 10 नहीं यूज करते। 10 के लिए हमें A लिखना है, राइट, 12 के लिए B। If decimal number is fractional, then multiply decimal number with base. Here the base is 16, 0.3125 into 16, right? Answer is 0.50500. Again we have to split integer and fractional. Integer is 0 and fractional is 0.500, right? 0.500 into 16, 8 is integer and fractional is 000. We have to stop here, right? 0.3125 decimal number into equivalent hexadecimal number is 0.08, okay। तो हमें यहाँ पे क्या करना है 3125 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 16 से? क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसको स्प्लिट किया इंटीजर एंड फ्रैक्शनल में। इंटीजर में 0 रखा, फ्रैक्शनल है 0.5000, राइट। अगेन ये इसको लिया, फिर 16 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 8.000। 8 को एज ए इंटीजर रखा, 0.00 एज ए फ्रैक्शनल, राइट। यहाँ पे अगर हम इटरेशन करें 0.000 इंटू 16 तो 0 आएगा, राइट। So we have to stop here. Now next is hexadecimal to decimal number. Multiply each digit by 16 raised to n, where n is the weight of digit. The weight is position of the digit starting from 0 on the right side से हमें 0 से लेकर स्टार्ट करना है and add the result को हमें एडिशन करना है, okay। Here the hexadecimal number ABC into ABC base is 16. We have to convert into equivalent by decimal number. Here ABC, right? So C into 16 raised to 0, right? B into 16 raised to 1 and A into 16 raised to 2.
Here C is a right side number and its column number is 0, B is 1 and A is 2, right? The value of C is 12, B is equal to 11, A is equal to 10, right? So 12 into 16 is to 0, 11 into 16 is to 1 and 10 into 16 is to 2, right? We cannot use A, right? A's value is 10, B is 11, C is 12, D is 13. Add all these numbers, right? That's our answer, 2748, right? If hexadecimal number is mixed number, means equal integer and fractional, right? 43 is integer, 0.25 is fractional, right? This is the mixed hexadecimal number. We have to convert into a binary decimal number, right? Same process like previous one. From radix up to radix to left side 0, 1, 2 and radix to right side -1, -2, right? We have to represent this number using 16 base, right? Add the value point के भाई लेगी 64 plus 3 67 point 0.125 plus 0.0195, that is 0.1445, right? हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या याद रखना है, हेक्साडेसिमल नंबर हो, राइट? तो हमें क्या यूज करना है, बेस 16 यूज करना है, नंबर को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे ABC है तो ABC नहीं लिख सकते, A के लिए 10, B के लिए 11, C के लिए 12, अब तो आगे जो भी चाहता है लेना है हमें, राइट? और जो भी नंबर है उसका आंसर करना है। सेम वे अगर मिक्स नंबर हो, राइट? यहाँ पे 43.25 है, राइट? तो 43 है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, रेडिक्स के आगे है तो 0, 1, 2 लेना है, रेडिक्स के पीछे मीन्स 0.25 तो -1, -2 लेना है कॉलम में, और सिंपल बेस से रिप्रेजेंट करना है। जो भी वैल्यू है उसको एडिशन करके लिखना है, पॉइंट के आगे एडिशन करके पॉइंट के आगे लिखना है, रेडिक्स पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो सारी एडिशन करके पॉइंट के बाद लिखनी है, ओके? तो यहाँ पे जो है 64 plus 3, तो पॉइंट के आगे है तो 64 plus 3 67 और इसके बाद, राइट? नाउ नेक्स्ट इज ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन. In this, convert each octal digit to a 3-bit equivalent binary representation, right? यहाँ पे क्या करना है कि 3-bit equivalent binary representation करना है, right? ऑक्टल का तो 0 है उसका 0 0 0 होगा, 1 का 0 0 1, 2 का 0 1 0, 3 के लिए 0 1 1, 4 के लिए 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1, सिंपल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है, राइट? 0 to 7 तक, राइट? चलो 705 ऑक्टल नंबर है, उसका हमें इक्विवेलेंट बाइनरी करना है तो 705 को सेपरेट लिखा, राइट? 7 का बाइनरी क्या है, 1 1 1, राइट? 0 का 0 0 0 और 5 का 1 0 1, तो ये हमारा हो गया ऑक्टल का बाइनरी नंबर, राइट? सिंपल क्या करना है, जो भी नंबर हो उनको 3-bit इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन करना है, राइट? और ऑक्टल में हम क्या यूज कर सकते हैं, 0 to 7 नंबर यूज कर सकते हैं, राइट? 0 to 7 नंबर यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें 3-bit बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया 1 1 1 0 0 0 1 0 1 हमारा आंसर। इसको सिंपल ऐसे ही एज इट इज लिखना है। Now next is binary to octal representation. From given fractional point, group bit in 3's to right and group bit in 3's to left, right? रेडिक्स से राइट में और रेडिक्स से लेफ्ट में 3 3 का ग्रुपिंग करना है। इफ लेफ्ट बिट लेस देन 3 बिट्स at the end, then stuff zeros to make it group of 3, right? अगर 3 के ग्रुप में नहीं होता है तो 0 हमें ऐड करना है और 3 का ग्रुप्स बनाना है। कन्वर्ट टू अ
ऑक्टल नंबर, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल है 10110 वी हैव टू कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। तो रेडिक्स पॉइंट के बाद क्या है 111, तो ये तो ऑलरेडी 3 का ग्रुप है तो हमने 3 का ग्रुप कर लिया। रेडिक्स के आगे, राइट, रेडिक्स के लेफ्ट साइड में तो 010 110 तो 110 एंड रिमेनिंग 1, राइट, एंड 00 हमें ऐड करना है। ओके, अब हमें इनका इक्विवेलेंट क्या करना है, ऑक्टल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 011 001 तो इसका 1, 011 तो इसका 3 हो गया है, 010 तो ये 2 है और ये 7 है, राइट। तो 132.7 ये हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर है। ये हमारा बाइनरी नंबर है, राइट, और इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर है। यहाँ पे पॉइंट रहेगा। Now next is hexadecimal to binary number. That is the easiest one. Convert each hexadecimal digit into a 4-bit equivalent binary representation. Right? Hexadecimal का हमें बाइनरी करना है। 0 है तो उसका तो 0 ही है, राइट। 1 है तो 1 ही है, 2 का 2, 3 का 3, 4, 7 तक तो सेम रहेगा, राइट। 8 है तो 8 का भी सेम रहेगा, 9 का भी सेम रहेगा, राइट। अब 10 नहीं ले सकते, 10 के लिए हमें क्या लिखना है, A, 12 के लिए B, C, 11 के लिए, राइट। सेम वे D, E and F. Convert hexadecimal number 10AF to equivalent binary number. तो हमें क्या करना है, सिंपल नंबर लिखना है 10AF और इसका इक्विवेलेंट बाइनरी लिखना है। तो 1 का क्या है 0001, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन करना है यहाँ पे, राइट। तो 0 का 000, A मीन्स 10, राइट, तो 10 का बाइनरी ये हो गया, राइट। F मीन्स 15 का ये बाइनरी हो गया, ओके। तो ये हो गया हमारा सिंपल हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ हेक्साडेसिमल नंबर है, उसका इक्विवेलेंट 4 बिट रिप्रेजेंटेशन बाइनरी नंबर लिखना है, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखना है। 3 बिट रिप्रेजेंटेशन किस में लिखना है, ऑक्टल में, राइट। नाउ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर, राइट। इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट। तो पॉइंट्स, ये हमारा हो गया रेडिक्स पॉइंट। रेडिक्स पॉइंट के लेफ्ट और रेडिक्स पॉइंट के राइट में 4 4 का ग्रुपिंग करना है। तो ये रेडिक्स पॉइंट, ओके। उसके बाद 0 1 1 1 1 है तो 4 का ही ग्रुप हो गया। ये है 0 1 0 और 1, 0 1 0 और 1 1, राइट। ये 4 का ग्रुप हो गया। ये हो गया रिमाइनिंग 0 1, राइट, 0 1 है और 4 का ग्रुप करना है तो हमें 2 0 ऐड करना है, राइट। और इसका इक्विवेलेंट क्या लिखना है, हेक्साडेसिमल लिखना है, राइट। तो इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया हमने। आंसर है 2D.7, राइट। तो 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1, तो इसका आंसर हो गया 2D.7। Now next is octal to decimal. Convert octal to binary first, right. octal to hexadecimal में कन्वर्ट करने के लिए octal to binary first कन्वर्ट करना है। From given fractional point, group bit into a 4 to right and group bits into 4 to a left, right. जो भी रेडिक्स पॉइंट है उसके राइट और उसके लेफ्ट में 4 4 का ग्रुपिंग करना है। कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, राइट। फिर उस जो भी है वो बाइनरी का हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर के लिए क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा जो भी नंबर है 1078, राइट। तो इसका क्या करना है, बाइनरी, ये क्या नंबर है, ऑक्टल नंबर है। तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 3 3 के ग्रुपिंग में होगा, राइट।
तो 6 का 3 बिट्स रिप्रेजेंटेशन 1110, 7 का 3 बिट्स रिप्रेजेंटेशन 111, 0 का 000 और 1 का 001, राइट। यहाँ पे याद क्या रखना है, ये ऑक्टल नंबर है, उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल का बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्टल का 3 बिट रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको 4 के ग्रुप में करना है, राइट। तो 0 0 0 और 1 ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। अब हमें ये बाइनरी नंबर को 4 के ग्रुप में लिखना है, लेफ्ट टू राइट, राइट। तो ये क्या हो गया, 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 मीन्स E, राइट। फिर 1 1 0 0 1 1 0 0 मीन्स 3, राइट। फिर 0 1 0 0 0 1 0 0 मीन्स 2। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल टू डेसिमल, राइट, हेक्साडेसिमल। फर्स्ट ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ऑक्टल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, राइट। ऑक्टल का बाइनरी मतलब 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन लिखना है। फिर वो जो 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन है तो उसको 4 के बिट में रिप्रेजेंट करना है, राइट। और फिर उनका आंसर लिखना है। Now next is hexadecimal to octal. Convert hexadecimal to binary first. From given fractional point, group bit in 3's to right and group bit in 3's to left. Convert binary to octal, right? Here hexadecimal number 1F0C and we have to convert into octal. तो 1F0C को लिख दिया, फिर इसका 4 बिट रिप्रेजेंटेशन लिखना है, बाइनरी लिखना है, राइट। हेक्साडेसिमल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मीन्स 4 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। तो C के लिए क्या है, 1 1 0 0, 0 के लिए 0 0 0, F मीन्स 15 का बाइनरी ये हो गया और 1 का ये हो गया। ओके, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन लिखना है हमें। अब हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। फिर जो हमें बाइनरी नंबर मिला उसको राइट से लेफ्ट 3 के ग्रुपिंग करना है। तो ये क्या हो गया, 0 0 1। सेकेंड क्या है, 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 और ये रिमेनिंग 0 रहेगा तो इसको 3 के ग्रुप में ऐड करने के लिए 2 0 ऐड करने पड़ेगी, बराबर। ये हो गया हमारा 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 और 0 और 2 0 ऐड किया मीन 0 0 0। अब इसका इक्विवेलेंट क्या लिखना है, ऑक्टल लिखना है। तो 0 का 0 0 0 0 0 1 का 1 1 1 मीन्स 7 1 1 0 0 मीन्स 4 0 0 1 मीन्स 1 1 0 0 मीन्स 4। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल का ऑक्टल। हेक्साडेसिमल का ऑक्टल करने के लिए फर्स्ट हेक्साडेसिमल को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल का बाइनरी मतलब 4 बिट रिप्रेजेंटेशन करना है, राइट। अब हमें क्या करना है, जो बाइनरी नंबर हमें मिला उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो राइट साइड से हमें क्या करना है, 3 के ग्रुपिंग करना है, राइट। 3 के ग्रुपिंग करते जाओ। अगर लास्ट में एक 0 हो गया या एक 1 हो गया तो 3 का ग्रुप कंप्लीट करने के लिए हमें 0 एड्स करनी है, राइट। और जो भी बाइनरी नंबर है हमने 3 के ग्रुपिंग में लिखा उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल लिखना है। तो हमारा हो गया हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। 1F0C का क्या है, 1744, राइट। अब हम देखते हैं बाइनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूल्स फॉर बाइनरी एडिशन। 0 + 0 क्या होगा, 0 0 + 1 क्या हो गया, 1 1 + 0 1 1 + 1
तो इसका क्या है 1 0, इसमें क्या है 0 आंसर है और कैरी क्या है 1 है, राइट, इसमें कैरी आएगी। चलो ये आंसर, ये हम एडिशन करके देखते हैं। एग्जांपल 1 + 1 0, कैरी 1, 0 + 1 + 0 + 1, तो क्या है 0 1 0 0 आंसर कैरी 1, 1 + 1 1 0, तो 0 रिमेनिंग रहेगा, कैरी 1, राइट। 1 + 1 + 1, तो क्या है 1 + 1 + 1 मीन्स 3, 3 का रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 1, तो आंसर इज 1 एंड कैरी इज 1, 1 + 1 1 0, 0 आंसर कैरी 1 + 1 + 1 मीन्स 3 1 1, 1 आंसर कैरी 1। यहाँ पे क्या है 1 + 1 + 0, तो आंसर क्या है 2, 2 मीन्स 1 0, 0 आंसर कैरी 1, तो कैरी 1 यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो ये कैरी सिंपल ऐड करना है, राइट। तो ये होगा हमारा बाइनरी एडिशन। अब हम देखते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन के रूल। 0 - 0 0 हो गया, 1 - 1 0, राइट, 1 - 0 1, 0 - 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, और हमें बोरो लेना पड़ेगा, विथ बोरो 1, 0 - 1 मीन्स 1 विथ बोरो 1, राइट। चलो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 0 - 1, 0 - 1 क्या है, रूल में देखो 0 - 1 1 विथ बोरो 1, तो यहाँ पे 1 लिखा, राइट, और बोरो यहाँ से लिया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पहले 0 था, तो 0 में से 1 माइनस नहीं होता, तो ये क्या करेगा, इसके बाजू वाले से एक बोरो लेगा, तो ये क्या था 1 था, वो खुद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या है ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। 1 0 मतलब कि 2 2 - 1 के 1 होगा, राइट। अब क्या है 0 - 1 यहाँ पे है, राइट, तो 0 - 1 पॉसिबल नहीं है, तो ये इसके बाजू वाले से बोरो लेगा, तो इसमें भी 0 ही है, राइट, तो ये क्या करेगा इसके बाजू वाले से 1 लेगा, तो ये भी 0 ही है, तो ये क्या करेगा इसके बाजू वाले से बोरो लेगा, तो ये खुद ये 1 है, तो ये खुद क्या हो गया 0 हो गया। अगर ये 1 है यहाँ पे आया, राइट, यहाँ पे क्या हो गया 1 यहाँ पे आया, तो 1 0 मीन्स 2 हो गया। अब एक 1 यहाँ पे रखा और एक 1 यहाँ लिया उसने, तो ये क्या हो गया 1 0 मतलब 2 हो गया। इसमें से एक यहाँ पे रखा और एक बाजू में दिया, तो 1 0 हो गया है। तो 1 0 - 1 मीन्स 2 - 1, तो 1 है आंसर। यहाँ पे 1 - 1 0, यहाँ पे 1 - 1 0, राइट। यहाँ पे 0 - 1 अगेन पॉसिबल नहीं है, तो ये बोरो लेगा, यहाँ पे बोरो देने के लिए है ही नहीं, तो ये बाजू वाले से मांगेगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, राइट, ये 0 हो गया और ये 1 यहाँ पे लिया, तो ये 1 0 हो गया मीन्स ये 2 हो गया, तो एक ये 1 यहाँ पे रखा है, एक 1 ट्रांसफर किया, राइट, तो ये हो गया 1 0 मीन्स 2 हो गया, 2 - 1 मीन्स 1, राइट, ये 1 - 0 मीन्स 0 and 0 - 0 is 0, right. Now next is binary multiplication and division. अब मल्टीप्लिकेशन सिंपल ही है, 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1, राइट, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या करना है सिंपल, ये 1 है उसको 1 0 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम रहेगा, राइट, तो सेम लिख दिया 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 लिख दिया। अब सेकेंड 1 है उसको ये सबसे मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 1 1 से, तो आंसर क्या आएगा 1 0 1 1 1, तो एक शिफ्ट करके लिखना है, यहाँ पे क्या करना है हमें एक शिफ्ट करके लिखना है। अब क्या है 0 0 को इस सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 आएगा, तो 5 टाइम्स 0 यहाँ पे एक शिफ्ट करके लिखना है, एक शिफ्ट किया और 5 टाइम्स 0 लिखा। अब ये 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 1 1 1, तो 1 क्या होगा 0 0 0 0 0, राइट, तो एक शिफ्ट करके 0 0 0 लिखा है। अब ये 1 इंटू 1 0 1 1 1, राइट, तो सेम ही आएगा 1 0 1 1 1, बट क्या करना है एक शिफ्ट करके लिखना है, ओके। अब हमें क्या करना है ये जो पूरा नंबर है उसका एडिशन करना है, राइट, तो 1 यहाँ पे 1 रहेगा, 1 + 1 0 1 0
यहाँ के कैरी 1 रहा, 1 + 1 + 1 3 मीन्स 1, यहाँ पे कैरी रहा 1, 1 + 1 0 1, राइट। ये हमें सिंपली एडिशन करना है, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब डिवीजन, डिवीजन में क्या करना है, सिंपल हम जब डिवाइड करते हैं वही 1 0 1 1 1 0 1 को 1 0 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या है 1 1 0, राइट, 1 1 0 और ये क्या है 1 0 1, राइट। तो ये तो बिगर नंबर है, तो हमें फर्स्ट क्या लेना है 0 0 0 लेना है, ओके। यहाँ पे 0 0 0। अब हम क्या करेंगे 0 0 0 किया, फिर माइनस किया तो क्या आया 1 0 1 1 1, और एक जो नंबर 1 है उसको नीचे शिफ्ट करना है, राइट। अब करेंगे 1 1 1 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 किया लिखा और यहाँ पे 1 1 0, राइट। फिर इसका सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 0 1, तो 1 0 1 × 1, राइट, और एक 0 शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे 1 0 1 × 1 1 0 1 × 1 लिखा, फिर एक शिफ्ट किया, फिर इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, आंसर क्या आया 1 0 0, फिर एक शिफ्ट किया नंबर, एक शिफ्ट किया, क्या देखते हैं 1 0 1 1 1, बिगर नंबर है, इससे बिगर नंबर है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके चला सकते हैं हम, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 0 0, राइट। अगर ये नंबर छोटा नंबर होगा, ये नंबर इससे छोटा नंबर होगा, यहाँ पे देखो 1 0 1, राइट, इससे छोटा है, तो हमने क्या लिया 0 0 0 और 1 को शिफ्ट किया, राइट। अगेन यहाँ पे क्या आया 1 0 1 1 0, राइट, तो लास्ट में 1 1 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये होगा हमारा डिवीजन का।